महाराष्ट्र महाभारत अंगे मोटी खबर सामे આવી રહી છે। ભાજપ નેતા સંજય કુટે પહોંચ્યા છે સુરતમાં। જલગાંવ એમએલએ સંજય કુટે મળશે શિંદેને, તો સુરતની હોટલમાં એકનાથ શિંદેને પણ તેઓ મળશે। જેવી રીતે જે તમામ ધારાસભ્યો છે તે અત્યારે સુરતની હોટલમાં છે, ત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ભાજપ નેતા સંજય કુટે સુરત પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેઓ એકનાથ શિંદેને પણ મળવાના છે। તો શિંદેના જે તમામ समर्थक धारासभ्यो छे ते पण तेमनी साथे छे। महाराष्ट्रना 22 થી વધુ એમએલએના સુરતમાં ધામા બાદ હવે સુરતથી મોટી ખબરો સામે આવી રહી છે। ત્યારે ભાજપના નેતા સંજય કુટે સુરત પહોંચ્યા છે, જ્યાં તે શિવસેનાના આ ધારાસભ્યોને મળશે। આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે જે તમામ મોટા નેતાઓ છે તેમના સુરતમાં ધામાની વચ્ચે હવે એકનાથ શિંદેને મળવા માટે સંજય કુટે પણ પહોંચ્યા છે, કે જેઓ ભાજપના નેતા છે। महाराष्ट्रना राजकारणमां जे उथलपाथल थई रही छे तेमां मुख्य केंद्र बिंदु जे छे ते सूरत छे अने महाराष्ट्रना 22 થી વધુ एमएलए सूरतमां छे तेवो दावो हाल करवामां आवी रह्यो छे। अने ते तमामनी वच्चे महाराष्ट्रनी जे सरकार छे तेना पर संकटना वादळो घेराया छे। तमामनो जे केंद्र बिंदु ते सूरत छे अने ते तमामनी वच्चे हवे मोटा मोटा नेताओ ज्यारे आ धारासभ्योने मळवा माटे पहोंची रह्या छे, त्यारे जलगांव एमएलए संजय कूटे पण मळशे शिंदेने। तो महत्वपूर्ण समाचार, एकनाथ शिंदे पर शिवसेनानी कार्यवाही। धारासभ्य दळना नेता पदेशी शिंदेनी हकालपट्टी। अजय चौधरी ने धारासभ्य दळना नेता बनावाया छे। महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रह्या छे। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना द्वारा मोटी कार्यवाही करवामां आवी छे। तो धारासभ्य दळना नेता पदेशी शिंदेनी हकालपट्टी करवामां आवी छे। महत्वपूर्ण समाचार, अजय चौधरी ने धारासभ्य दळना नेता बनाववामां આવ્યાની માહિતી હાલ સામે આવી રહી છે। એકનાથ શિંદે દ્વારા જેવી રીતે જે કામગીરી કરવામાં આવી છે, રાજનીતિક સંકટ વચ્ચે આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। અમે બાળા સાહેબના કટ્ટર શિવ સૈનિક છીએ, એકનાથ શિંદેએ આ ટ્વીટ કર્યું છે। અમે બાળા સાહેબના કટ્ટર શિવ સૈનિક હોવાનો તેઓ દાવો કરી રહ્યા છે। ટ્વીટમાં કહી રહ્યા છે, બાળા સાહેબે અમને હિન્દુત્વ શીખવ્યું છે। बाळा साहेबना विचारो अने धर्मवीर आनंद दिगे साहेबना उपदेशो अंगे अमे क्यारे सत्ता माटे छेतरपिंडी करी नथी अने क्यारे छेतराईशुं पण नहीं। आ वात तेओ ट्वीट करीने कही रह्या छे। तो महाराष्ट्र महाभारत अंगे सौथी मोटा समाचार सूत्रोना हवालेथी मळ्या छे। मोटा समाचार, सीएम उद्धव ठाकरेए मूक्यो छे प्रस्ताव। सूत्रों द्वारा माहिती, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तेवो प्रस्ताव तेमणे मूक्यो छे। सीएम उद्धवे पोताना राजीनामानी पण वात करी छे तेवी माहिती सूत्रों द्वारा सामे आवी रही छे। અને હવે આ વાત કેટલી સાચી છે તે સમયાંતરે ખબર પડશે, પરંતુ કોઈ પણ રીતે સરકાર છે તેને બચાવવી જરૂરી છે, જેના માટે આ જે કહી શકાય કે સામેથી ઉદ્ધવ ઠાકરે કહી રહ્યા છે કે તે રાજીનામું આપી શકે છે। હાલ સૂત્રો દ્વારા આ માહિતી સામે આવી છે કે તે આ પ્રસ્તાવ મૂકી ચૂક્યા છે। એકનાથ શિંદેને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ પણ તેમના દ્વારા મૂકવામાં આવ્યો। તો મહારાષ્ટ્રમાં મહાભારત અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। तो जेवी रीते सीएम उद्धव ठाकरे आ प्रस्ताव मूक्यो छे तेवी माहिती हाल सूत्रों द्वारा सामे आवी रही छे। कोईपण रीते सरकार अत्यारे बचावी खूब ज जरूरी बनी गई छे अने तेना कारणे ते पोतानुं पद पण छोडवा माटे तैयार छे। राजीनामानी पण तेमणे वात करी छे। एकनाथ शिंदेने मुख्यमंत्री बनाववो होय तो ते पण ते बनाववा माटे तैयार थई चूक्या छे। जेवी रीते महाराष्ट्रमां राजकीय गरमावो આવ્યો। एकनाथ शिंदे द्वारा जेवी रीते पोतानी नाराजगी दर्शाववामां આવી અને તે બાદ તેમની સાથે ઘણા બધા ધારાસભ્યો હોવાની પણ તેમણે વાત કહી। તે તમામની વચ્ચે આ ધારાસભ્યો સાથે તેમના સુરતમાં ધામા અને હવે કોઈ પણ રીતે કઈ રીતે સરકારને બચાવી તેના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેને લઈને જે પ્લાનિંગ થઈ રહી છે તેના ભાગરૂપે હવે સૂત્રોના હવાલેથી આ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જો મુખ્યમંત્રીનું પદ છોડવું પડે તેના માટે પણ સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, તેના માટે પણ તે તૈયાર છે। એકનાથ શિંદેનું કહેવું હતું કે શિવસેના છે તેને સાઇડલાઇન કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેને લઈને તેમણે નારાજગીના સૂર છે તે ઉગામ્યા હતા અને તે તમામની વચ્ચે હવે ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા પ્રયાસ એ પણ કરવામાં આવ્યો કે કોઈપણ રીતે તેમની સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે, એકનાથ શિંદે સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે તેવા પ્રયાસ થઈ રહ્યા હતા। एकनाथ शिंदे पण टसથી મસ્ત થવા માટે તૈયાર ન હોય તેવા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા હતા અને તમામની વચ્ચે હવે એકનાથ શિંદેને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે ઉદ્ધવ ઠાકરે
તૈયાર છે, રાજી છે, પોતાના પદ પરથી તે રાજીનામું પણ આપવા માટે તૈયાર છે તેવી માહિતી સૂત્રો દ્વારા સામે આવી રહી છે। મુંબઈથી સંવાદદાતા વસીમ અંસારી જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે। वसीम, जिस तरीके से अभी ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे है वो बिल्कुल अपना पद छोड़ने के लिए भी तैयार है, सबसे जरूरी बात किसी भी तरीके से सरकार को बचानी है, क्या ज्यादा अपडेट है इस मामले में? देखिए, जिस तरह से खबरों का बाजार गर्म है, अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई करते हुए पहले उन्हें गट नेता के पद से हटाया है, तो ऐसे में ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद के लिए उन्हें जानकारी देंगे या फिर ये प्रस्ताव रखेंगे कि आप सीएम पद पर जाएं। जो खबरें सामने आ रही है उसमें लेकर अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बात सच है कि मनाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। खास करके बड़े मंत्रालय जो हैं वो अपनी शिवसेना अपने खाते में लेकर, हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे मानते हैं तो वो उन्हें दिए जा सकते हैं, लेकिन अब भी जो उनके पास जिम्मेदारी दी गई है MSRDC जो अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी ऑलरेडी है उनके पास। और जिस तरह से देखा गया है कि उन्होंने अपने करीबों को बताया और जो शिवसेना के नेता बता रहे हैं जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं कि जो बड़े मंत्रालय हैं जो NCP के पास चले गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कामकाज हैं उनके हो नहीं पा रहे, क्योंकि NCP के नेतागण उनके कामों को ध्यान नहीं दे रहे। जो फंड के प्रॉब्लम्स है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में 20 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के पास मौजूद हैं, लेकिन अब भी 30 से ज़्यादा जो विधायक है वो एकनाथ शिंदे के पास इस तरह की मौजूदा स्थिति नज़र आ रही है। अगर शिवसेना ने जो प्रस्ताव भेजा है, अगर उस प्रस्ताव पर एकनाथ शिंदे खरे नहीं उठते, इन दोनों की बातचीत का समाधान नहीं होता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक नई पार्टी के तौर पर एकनाथ शिंदे को नए रोल में देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक माहौल यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है किसी भी हाल में ये जो सत्ता है वो बरकरार रखने की, ये 2.5 साल की सरकार में इससे पहले 3 बार इसी तरह के, ये तीसरा बार मामला है, इसी तरह के मामले देखने को मिले हैं। जब सरकार गठित हो रही थी उस दौरान भी अजीत पवार बाकायदा सुबह के वक्त जाके देन से इस्तीफा लेते हैं, एक दौर वो भी देखा गया था। बीच में कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो नाराज नजर आ रहे थे, उन्होंने दिल्ली तलब किया था, दिल्ली में जाके नेताओं की शिकायत की थी। इससे पहले जिस तरह से विधायकों को लेकर जो सवालिया निशान उठने लगे, 2 से ज़्यादा मंत्री जो हैं अभी जेल में हैं, उन्हें लेकर सवाल, तो ऐसी कई तरह के संकट इस सरकार पर आ चुके हैं और इससे पहले भी कई चीज़ें, लेकिन ये वाला जो संकट है ये काफ़ी बड़ा संकट है। अगर ये सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया, ये संभाल नहीं पाई, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आते, वो मानते नहीं है, तो ये पूरा खतरा सरकार पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक वहाँ पर पहुँचेंगे, इसके बाद वो चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद इस बात पर ज़रूर जोर दिया है कि हमें बाला साहब के हिंदुत्व, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि बाला साहब ठाकरे होते तो NCP और कांग्रेस के साथ नहीं जाते थे, तो एक हिंदुत्व का मुद्दा ये भी उन्होंने उठाने की कोशिश की। और साथ ही वो धर्मवीर के बारे में जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया, उस बारे में भी साफ तौर पे यही बताने की कोशिश की है कि वो अपने वादों पे टिके हैं और अपनी बातों से कभी हटेंगे नहीं और वो सत्ता के लिए नहीं कर रहे, इस तरह की वो जानकारी देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन आपसी मतभेद इस कदर बढ़ चुका था काफ़ी दिनों से कि इतने बड़ा कदम एकनाथ शिंदे को उठाना पड़ा, जो सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, और जिस तरह से किसी शिवसेना ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा झटका एकनाथ शिंदे शिवसेना को दे सकते। बिल्कुल वसीम, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप